Hello guys, just notify if I am visible and audible to you. Good evening everyone, I can read your comments. Just notify me in your messages whether you can see me and you can hear me. Okay, you can hear me and you can see me, right? Okay, thank you. Okay. We will start at 9 o'clock. So, before we start, if you have any doubts regarding your preparation, you can send me the messages. I can read your messages so that if I am not able to incorporate or if I have not planned to talk about that topic, I will include that in my talk today. So, before I begin, okay, I got your messages. I am audible and visible. If you guys have any query of your own, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ योर ओन यू कैन श्योर मैं हिंदी में भी बात करूँगी. मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि मेरे लाइव जाने के पहले और मेरे सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपके किसी भी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. How to start anthropology will be included. How to be self motivated, okay. Daily mains answer writing, ठीक है. How to read NCERT, how to prepare for UPSC. Okay, this session is for anthropology per se. तो उसके related अगर 2023 strategy, okay, that's very far. 2022 aspirants के लिए ये anthropology के लिए है. How to choose optional. Working professionals, okay. Don't bother about the language. I will speak both in Hindi and English, so don't have to worry about the communication. Beginners book strategy वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इसमें. Anthropology is what I am going to talk about today. 2022 की ही strategy मैं डिस्कस करने वाली हूँ. 2023 is very far, so let's not get into that. We will wait for 2 more minutes and we will start exactly at 9 o'clock. Anthro books will be discussed. Working professionals, okay, all these prelims come mains. Sure, diagrams, current affairs कैसे include करना है, I will include that.
Okay, hello guys. My name is Chandni Jain, and I have been teaching anthropology since 2019. In 2020, I had circulated value addition material, right? तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस 2020 के मेंस के पेपर में आए थे, एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी अवेयर और हु हैव सीन द पेपर ऑफ 2020, दे मस्ट बी अवेयर दैट इट वॉज अ वेरी अनयूजुअल पेपर. तो अब वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे वो और उसकी वजह से क्या हमें हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, डू वी हैव टू चेंज द होल स्ट्रैटेजी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, राइट. तो सबसे पहले द चॉइस दैट वी have in front of us is between whether to choose anthropology as an optional or not. So because I teach anthropology, I will tell you the benefits of choosing anthropology, right? As it is always said that it is a very short syllabus subject, right? And it is very scoring considering you have strong basics of the subject, right? And then you have the right guidance. These three are the important things that will set you apart if you choose anthropology as an optional. After you choose or select an optional, after that it is very important that you strategize the way you study the optional, right? You don't have the whole youth of time under you, right? I think please stop sending messages so that I can complete my speech and then I can answer your queries. जी बिल्कुल, ये बिगिनर्स के लिए ही है. द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू शेयर एंड ऑल द डिटेल्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर, इट इज़ फॉर द बिगिनर्स and they will be useful for 2022 as well as 2023 however they are preparing. ठीक है, तो सबसे पहले what the most important thing that comes in our mind is the syllabus. ठीक है, तो सबसे पहले you have to go through the syllabus and we will understand that once we go through the syllabus we don't have to follow the syllabus in a chronological manner when we start studying. तो इसीलिए एक ब्लॉक वाइज टाइम टेबल मैंने प्रिपेयर करके रखा है. ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा. मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360. यहाँ पर आप टेलीग्राम का ये चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऐसे इसके रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा. तो वहाँ से आप इस तरह के प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं और उस तरह से पढ़ सकते हैं. तो दिस होल सिलेबस दैट इज़ वेरी इन अ वेरी हेवायर मैनर, राइट. तो उसको एक ब्लॉक वाइज मैनर में मैंने सेग्रीगेट करके रखा है जिससे आपका प्रिपरेशन 6 वीक में डिवाइड होता है और उसी तरह से आपको हर बार जब भी आप रिवाइज भी करते हैं तब आपको उस तरह से पढ़ना है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, और भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे ही नाम से यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मैं मिल सकती हूँ. ठीक है, तो एनी एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड क्वेरी यू कैन आस्क मी देयर, राइट. तो अगर हम स्टार्ट करें कि एक बार हमने एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल तो चूज कर लिया, उसके बाद में द थिंग दैट कम्स इज फर्स्ट वी गो थ्रू द सिलेबस एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ ब्लॉक वाइज मैनर. ठीक है, तो वो ब्लॉक वाइज आपको मिल गया. उसके बाद में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द सोर्सेज. नाउ सोर्सेज वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई देम, right? Once we multiply the sources, we tell the universe or rather ourselves that okay, we have ample of time to cover the syllabus, so we get distracted, right? तो ऐसा नहीं होना है. इसी वजह से हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप द सोर्सेज लिमिटेड. मैं सजेस्ट करूंगी सबसे बेसिक थिंग ब्रेन ट्री, कि आप ब्रेन ट्री का मटेरियल उठाइए, उससे पेपर 1 कवर कीजिए. ठीक है, और रेड्डी जो मुनिरत्नम रेड्डी के नोट्स हैं वहाँ से पेपर 2 को कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, यू कैन रीड सोशियोलॉजी एनसीईआरटी very lucidly. It has covered about the Indian anthropologist. However, for the Western anthropologist, there is a website called Alabama University. That is what you can follow. ठीक है, उन सारी चीज़ों के सोर्सेज के भी डिटेल्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का नाम है एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360. ठीक है, तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, तो आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में. एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360 इस नाम से आपको हैंडल टेलीग्राम का मिल जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी. तो आपने पहले ये कर लिया, एंड दिस इज द बेसिक थिंग. आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स.
I think the session is going to be saved. Please allow me to complete the whole strategy. Okay, I will pin the message. I will write it again and I think I'll pin the message. राइट, आई हैव पिन द मैसेज ऑल्सो फॉर यू गाइज. सो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और जो मैंने बोला, सबसे पहले वो सोर्सेज आपको पढ़ने हैं. यू डोंट हैव टू गेट डिविएटेड. ठीक है, वंस यू कंप्लीट द होल रीडिंग ऑफ द बेसिक सोर्सेज, दैट इज ब्रेनट्री एंड रेड्डी ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, उसके बाद में फॉर द वैल्यू एडिशन यू कैन रीड एम्बर एंड एम्बर, पीनाथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो बुक्स टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं. And also I would like to give this strategy with a pinch of salt, that if you want to be authentic and you want to clear the exam in 1 or 2 attempts, then it is wiser for you to listen to multiple strategies and devise your own strategy, right? तो आपका ये काम आसान करने के लिए UPSC गाइड के साथ कोलैबोरेट करके मैं क्लासेस भी लेने वाली हूँ 2022 के बैच के लिए. ठीक है, द क्लासेस आर गोइंग टू बिगिन. ऑल द डिटेल्स आर गोइंग टू बी देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ UPSC गाइड. तो वहाँ से आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं. एंड आई विल कवर द कोर्स विच विल लाइक द डेट्स आर नॉट फाइनलाइज्ड येट, लेकिन जब भी स्टार्ट होते हैं उसके विद इन 3 months में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका एक बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द प्लान दैट आई हैव बीन फॉलोइंग. एंड ये मैंने काफ़ी बार अप्लाई भी किया है. 50 डेज के भी बैचेस लिए हैं एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल. दो स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम इन 2021, सम हैव गिवन इन 2020 एंड वी आर वेटिंग द रिजल्ट्स. ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी की जो बात करते हैं, तो फर्स्ट बेसिक चीज़, जी बुक्स के नाम में भी मैं बोल रही हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, वो आपको बेसिकली कवर करनी है. NCERT पढ़ के, सोशोलॉजी के NCERT है, वहाँ से आपको थिंकर्स मिल जाएंगे. ठीक है, और एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ब्रेन ट्री का पूरा मटेरियल, भले ही आपको समझ में आए या ना आए, एक बार पढ़ के आपको यू हैव टू कंप्लीट द होल रीडिंग वंस ऑफ ब्रेन ट्री एंड यू हैव टू कंप्लीट द रीडिंग ऑफ मुनिरत्नम रेड्डी नोट्स. एंड अगर आप चाहें तो वहीं पे पेंसिल से हाईलाइट कर दें या मार्क कर दें. ठीक है, बट डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स देन एंड देयर इटसेल्फ. सो दिस इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं. अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर भी वीडियोस अवेलेबल है. मेरे ही नाम से आपको यूट्यूब का चैनल भी मिल जाएगा, चांदनी जैन के नाम से ही. आप पोस्टर पे मेरा स्पेलिंग वगैरह देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि पहले आपको ये दो सोर्सेज कंप्लीट करने हैं. जितने फास्टली आप पूरा सिलेबस एक बार रीड कर पाएं, तो वो आपको करना है. आफ्टर दैट, आफ्टर दोज 50 डेज जो आप फर्स्ट सिटिंग में बैठते हैं, सेकेंड सिटिंग में यू हैव टू गिव अ लॉन्गर टाइम, से सम 80 days और समथिंग. तो द पीपल आर ज्वाइनिंग द कोर्स विल नॉट हैव टू डू दैट 50-day exercise because that is going to be my burden. Clear? चांदनी जैन, CHANDINI जैन, इस नाम का यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं. जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक बार ये 2 सोर्सेज 50 डेज में कंप्लीट करने के बाद एक रीडिंग, ओके, उसके बाद में आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स. ठीक है, और नोट्स के पहले इट इज़ बेटर, या नोट्स के साथ साथ में इट इज़ बेटर दैट यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ऑल्सो. ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है. तो 50 डेज स्टार्ट करने के पहले सिलेबस देखना ज़रूरी है. और आप चाहे कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, वो जो प्लान है 6 वीक का ब्लॉक वाइज प्लान, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. वो फ्री में है अवेलेबल. ठीक है, उसी हिसाब से आप पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हैं. वंस अगेन प्लीज़ मैम, क्या प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करें. The messages are coming too fast. I'm not able to pick all the messages. So let me complete the strategy and then I will be able to look at your messages. Books का नाम है Brain Tree का material for paper 1 and Muniratnam Reddy notes for paper 2. So these are the basic sources. अगर आप self study करते हैं तो पहले इन्हें पढ़ लीजिए. And after that, when you do the second reading, what you have to do is along with note making and the second source that you're going to refer.
द टेक्स्ट बुक्स बेसिकली, विच कैन बी एम्बर एंड पीनाट और नदीम हसनैन, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आपको उन्हीं नोट्स में ब्रेनट्री और रेड्डी में वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है, और उन्हीं को नोट्स बनाते हुए आपको वो ऐड ऑन करना है। और उसके अलावा एक वैल्यू एडेड मटेरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो उसी तरह से काफ़ी सारी जो करंट अपडेट्स हैं, जैसे 2020 में आपने देखा होगा अ लॉट ऑफ थिंग्स केम फ्रॉम द करंट अपडेट्स, जिसका मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था। तो उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और वो जिम्मेदारी भी मेरी है कि मैं आपको जब तक ये कोर्स कंप्लीट होता है दिसंबर एंड तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी मैं आपको आई विल बी गिविंग यू ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान, ठीक है। कोर्स की फ़ी और जो भी स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें यूपीएससी गाइड के ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। तो वो जो चीज़ें हैं, आस्क मी एडमिशन रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे आप यूपीएससी गाइड के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं उसके लिए मेरा यूट्यूब का चैनल का भी मैंने आपको शेयर कर दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक शेयर कर दिया है। तो इन दोनों जगह पर आप मुझे डायरेक्टली पिंग करेंगे। कोई भी अगर सब्जेक्ट की रिलेटेड क्वेरी है तो आपको मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। आई एम एक्टिव एट बोथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ब्रेन ट्री बुक्स नेम भी पिन कर दीजिए, ओके। ब्रेन ट्री है और मुनिरत्नम रेड्डी नोट्स, okay, I think I've pinned the messages, Braintree and Muniratnam Reddy notes, okay। So this is the second stage of preparation जहाँ पर आप नोट मेकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। So that you have to do after you have completed the notes, because I believe that आंसर राइटिंग जो होता है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके लिए आपको अगर आपके नोट्स रेडी रहेंगे तो आप तेज सोच पाएंगे और तेज लिख पाएंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग इज नथिंग बट डूइंग द टाइम मैनेजमेंट एंड रिकॉलिंग वट एवर यू हैव रिटन। तो जितने आपके बहुत अच्छे बढ़िया नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, मैं सारे जो डिटेल्स है एक बार सारा मैसेज फिर से कर दूंगी, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे मैं करके पिन कर दूंगी। आप डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको फर्स्ट स्टेज में बेसिक रीडिंग देनी है और जितना फास्ट हो सके उतने फास्ट आपको करनी है। सेकंड रीडिंग में आपको नोट मेकिंग करनी है और थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको आंसर राइटिंग में फोकस करना है। एंड देन यू विल शिफ्ट टू आफ्टर प्रीलिम्स मोड, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो पीरियड है उसमें आपको एक्सटेंसिवली टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक strategy that is important. So this was from my side। और जो कोर्स में होगा, कोर्स में तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे वो पूरा प्लान को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके एक फुल लेंथ टेस्ट भी होगा जिसमें मैं आपको जज करूँगी कि किस तरह से आपने इंटरनलाइज किया है नहीं किया है, वो सारी चीज़ें होंगी। तीसरा होगा कि आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें नोट मेकिंग के साथ तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, वो सारी चीज़ें अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हो तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। सो दैट विल बी माई kind of commitment towards you। and if you join the telegram channel and you can talk to the rest of the ex students also जिनका फीडबैक भी वहाँ पर शेयर किया गया है, तो वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ। क्लियर? तो अभी अगर आपके पास कोई डाउट है, बिकॉज नाउ आई कैन चेक द मैसेजेस मोर फ्रीक्वेंटली, तो अभी आप पूछ सकते हैं और मैं मेरे सारे डिटेल्स एक बार फिर से पिन कर देती हूँ। चांदनी जैन नाम से यूट्यूब चैनल है और एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360 नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। तो ये है जी मैंने पिन कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन कर दिया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और इसके साथ में जो क्लासेस होंगी वो आपके जीएस
के साथ भी कोलैबोरेट, मतलब आपको इस तरह से बर्डन नहीं किया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस होंगी, ठीक है, आपको रिविजन का भी टाइम मिलेगा एंड इट विल बी एंश्योर्ड दैट सारा सिलेबस विद इन द टाइम, और सारा सिलेबस, काफ़ी सारे टीचर्स जो होते हैं वो सारा सिलेबस कवर नहीं करते हैं, ठीक है, उसका उससे काफ़ी स्टूडेंट्स भुगतते भी हैं, विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट टू हैपन विथ यू। इसीलिए मैं सारा सिलेबस विद इन द टाइम लिमिट करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। एंड हिंदी मीडियम में तो एंथ्रोपोलॉजी आई एम डाउटफुल कि होगा। ट्वेल्थ इज़ वेरी फार। दिस सेशन वॉज अबाउट एंथ्रोपोलॉजी गाइज, तो पता नहीं इस तरह के ब्रेन ट्री ठीक है। तो मैं सारी स्ट्रैटेजी जो सेल्फ प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। दोबारा एक बार मैं कंक्लूड करने के लिए बता देती हूँ कि पहले आपको फर्स्ट रीडिंग देनी है, ठीक है, और उसमें उस फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट है, कितनी नहीं है, और वो फर्स्ट रीडिंग में आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, ना ज़्यादा कुछ समझना है। सेकंड रीडिंग में जब आप नोट मेकिंग करते हैं उस टाइम में आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी है और उस तरह के नोट्स एटलीस्ट हाईलाइट करके रखने हैं। और थर्ड टाइम जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आंसर करने के लायक हैं या नहीं। वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ताकि जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच में जो गैप होता है उसमें आप कंप्लीटली आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग इज अ मैकेनिकल थिंग। आई होप आई वॉज क्लियर अबाउट इट। तो अभी मैं आपके और कॉमेंट्स, पबैड नहीं, 12th के बाद MBA MMK_089, आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। आई विल बी एबल टू क्लैरिफाई योर डाउट बेटर ओवर देयर। कंसिस्टेंसी कम्स विथ डिसिप्लिन, सो फोकस ऑन डिसिप्लिन, तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी अपने आप, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कैसा रहेगा मैम? हिंदी में अवेलेबल इतने नहीं होते हैं, अगर आप ट्रांसलेट कर पाएँ, जो इंग्लिश में चीज़ें सोर्सेज अवेलेबल हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएँ तो फिर हो सकता है। लॉट्स ऑफ बफरिंग इशू राइट नाउ। जनरल टेम्पलेट फॉर आंसर ऑफ एंथ्रो, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। टेम्पलेट ऑफ आंसर ऑफ एंथ्रो इस तरह से होना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन में इट हैज़ टू इमीडिएटली आंसर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द like basics of the question that is asked, और उसको एक नॉच ऊपर, जैसे अगर मैंने पेलियोलिथिक कल्चर के बारे में पूछा है तो आपको इंट्रोडक्शन में इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि आप सारे ही कल्चर्स के बारे में एक बार उसको बता दें, ताकि आप उसको समझा पाएं कि चलो भाई पेलियोलिथिक के बारे में तो मुझे पता है, और पेलियोलिथिक इस सेक्शन ऑफ द पेपर में आता है, इस सेक्शन ऑफ सिलेबस से आता है, तो उससे एक बहुत ही वाइड आइडिया एग्जामिनर को लगता है। एंड आफ्टर दैट जो बॉडी होती है, बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। और उसके बाद में कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंक्लूजन हैज टू एक्सटेंड द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन है लिव इन रिलेशनशिप्स वाला जो 2013 में पूछा गया था, तो उसमें आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? यू हैव टू एक्सटेंड इट दैट दो मैरिजेस के जो मैरिज का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, राइट, लेकिन it is not that marriage as an institution is not going to be there. Marriage as an institution is going to be there, but its form is going to be changed, just like live-in relationships के तरह change हुआ है, ठीक है। उसी तरह से gay marriages आ रही हैं, lesbian marriages आ रही हैं, but marriage as an institution is running। इस तरह से आपको conclusion थोड़ा एक notch higher में और introduction भी एक notch ऊपर से start करना होगा जो भी question पूछा गया है। तो that is the very unique way of dealing with such questions। और 2020 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट नातुफियन कल्चर एटसेट्रा,
ठीक है। तो उसमें आपको इस तरह से लिखना होता है कि और ये सारी चीज़ें सेपियंस बुक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बार निकले हैं, तो वो भी हमने यूट्यूब चैनल पे उसका भी मतलब उसके भी वीडियोस शेयर हो चुके हैं, तो वहाँ से भी आप उसको पिकअप कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और किसी के डाउट्स हैं क्या? हाउ मच टाइम? ओके, आई थिंक द क्वेश्चंस आर नॉट। इंटरव्यू में क्या पूछा? इंटरव्यू रिलेटेड भी एंथ्रोपोलॉजी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी शेयर हो चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर एंथ्रोपोलॉजी, अगर आप ऑनलाइन करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो एक एंथ्रोपोलॉजी न्यूज़ करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या हार्वर्ड एंथ्रोपोलॉजी या ऑक्सफोर्ड एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे जो हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की भी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। Telegram channel link has been shared already. It is in the pinned channel, pinned message. Interview में what are asking madam? एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, इस बार जो इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए उसका। नोट्स थ्रू एनसीईआरटी ऑप्शनल डिसिप्लिन। आपको स्टार्ट करना है, किसी भी ब्लॉक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो जो 6 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है सारा सिलेबस, ठीक है, तो वो आप किसी भी ब्लॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर मच। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं सेइंग से इट इज़ वाइजर टू स्टार्ट विथ थियोरीज बेसिकली, तो वो बेटर रहता है। Telegram channel name has been sent already. Sociology. प्रीवियस क्वेश्चंस आपके जो खुद आप नोट्स बनाओगे वही आपका बेस्ट सोर्स होगा, ठीक है। रेडीमेड आंसर्स तो इट इज़ नॉट गुड, दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। Yes, you can start studying during your graduation also. आई थिंक ये जनरल से क्वेरीज हैं, एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। फीस वगैरह जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं, आप यूपीएससी गाइड में लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। साइंस बैकग्राउंड है तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है। अदरवाइज जो भी स्ट्रीम में आपने जैसे मेडिकल अगर साइंस किया है तो मेडिकल साइंस भी ऑप्शनल होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू हैव चोजन, बट एंथ्रोपोलॉजी गोज फॉर एवरीबडी। फॉर एंथ्रोपोलॉजी एम्बर एंड एम्बर रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट और नॉट? एम्बर एंड एम्बर पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी but not in the first go, क्योंकि first go में it is better that you read according to the syllabus and the sources that I mentioned, that is Braintree and Reddy, they have given notes in the format of the syllabus only, so that will ease your preparation. Aditya arises, can you please repeat your question? What was your question? I missed it. I will definitely answer it. मैम आप केवल लड़के लोग बता रहे हैं।
yes, it does not matter if you are a science background student or an arts background student. Anthropology is such a subject जहाँ पे आप मतलब even I am not a science background student and today I am teaching anthropology because I love the subject, right? So it does not matter आप science background से है या नहीं. श्रीनिधि जी, I answered your question. Books का नाम मैंने already ले लिया है, ब्रेन ट्री एंड मुनि रत्नम रेड्डी नोट्स, द बेसिक सोर्स. उसके बाद में तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं. नहीं, NCERTs are never sufficient. They are only the basic books that you read before you get into the ocean of books. सोशियोलॉजी का ये सेशन नहीं था सर, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है. बुक लिस्ट तो मैंने बोल दी है काफ़ी बार. ब्रेन ट्री और रेडी से आप पढ़ें, ठीक है. मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि जस्ट 2 बुक से क्या होगा, बट दे आर अ सेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 बुक्स ईच, ठीक है. तो वहाँ से आपका मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाएंगे और उसके ऊपर सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन करना है विथ एम्बर एंड पीनट. So these are the textbooks that you're going to read for the value addition, and then you're going to do value addition from the current affairs that you will get through my Telegram channel. How much time it take to complete anthro optional? हेमंत सिंघाड़िया, ठीक है. अगर आप सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं और आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो आप 100 डेज में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन इफ़ यू स्टार्टिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, आई वुड सजेस्ट कि 120 डेज आप पकड़ कर चले. 120 to 130 डेज में आपका हो जाना चाहिए. और अगर आप कोचिंग लेते हैं या मुझसे पढ़ते हैं तो मैं आपका सिलेबस विद इन 3 मंथ्स में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ. और आपको साथ साथ में आई विल मेक यू ऑल्सो वर्क, ताकि आपका मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन बिफोर द प्रीलिम्स ही हो जाए. ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं तो मैंने मेंशन किया था अबाउट एंथ्रो न्यूज़, ठीक है. तो वहाँ से आप उनके वेबसाइट से देख सकते हैं, या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड की जो एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स. बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च ऑल दिस, ठीक है. यू डोंट हैव द होल टाइम इन द वर्ल्ड. तो उससे बेटर है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें. तो वहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी आपके पेपर से यूपीएससी ऑप्शनल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं. मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी. विल यू प्रोवाइड द फुल नोट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द कोचिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव? उसमें आई एम गोइंग टू टीच यू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू नोट्स during the class, and I'm going to give you the sources from which you will have to add them and you have to make your own notes. अगर आप मेरा YouTube चैनल पे वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा एक नोट मेकिंग के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि आपके खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स, ठीक है, जितने भी आप टॉपर्स देखते हैं, अक्षत जैन हो या जिनको लाइक हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम, तो वो मैम हैं, ठीक है, लक्ष्मी मैम. तो अगर इनके आप देखें तो उन्होंने खुद से नोट्स बनाए हैं. तो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ टॉपर यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स. तो डेफिनेटली मैं तो नोट्स दूंगी, लेकिन उनको रिफाइन और आपका जो पर्सनल टच है वो आपको देना पड़ेगा, और वो हम साथ साथ में करेंगे. और ये सारी चीज़ें विद इन 3 मंथ्स में होंगी, ठीक है. तो दिसंबर के पहले वो सारी चीज़ें होंगी. टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होंगी, ठीक है. अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. ऑनलाइन सोर्सेज फॉर जूलॉजी नहीं मैडम, ये एंथ्रोपोलॉजी का सेशन चल रहा है. यू विल हैव टू स्टार्ट विथ एनी ऑफ द वन ब्लॉक वाइज सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है. टेलीग्राम चैनल का लिंक ये पिंड मैसेजेस में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. स्टार्ट कैसे करें
तो किसी भी ब्लॉक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एनी ब्लॉक दैट यू फाइंड फीजिबल। अगर आपको सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पसंद है, मैरिज, फैमिली, किनशिप के बारे में जानना, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू स्ट्रेटेजाइज कि मुझे सबसे टफ चीज़ सबसे पहले करनी है, तो वो थियोरीज। अगर मेरी बात करें मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले मैं थियोरीज और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो I try to balance both the things out, and that is how I teach. Ma'am, UPSC clear cyber security. जो भी एडमिशन फीस ये सारी चीज़ें के बारे में है, आपके क्वेरीज हैं, वो आप यूपीएससी गाइड से वो कर सकते हैं। शेयर योर टेलीग्राम चैनल लिंक। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिंड मैसेजेस में आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360 इस नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। और मेरे ही नाम से यूट्यूब का चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टेलीग्राम चैनल तो बोल दिया है। सुसन मैम के नोट्स काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाते हैं, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो देन यू विल ऑल्सो हैव टू डू सम एडिशन, एंड ऑलरेडी वो नोट्स काफ़ी बल्कि होते हैं, तो देन यू विल हैव टू मेक द चॉइस। मैम फॉर एंथ्रोपोलॉजी सेल्फ स्टडी इज गुड और टेकिंग कोचिंग इज बेटर। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, और मतलब दुनिया भर का टाइम है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको मतलब मेरे एक्सपीरियंस से गेन करना है और टाइम सेव करना है, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है अगर आपके पास टाइम है। और मैंने बता दिया है स्ट्रैटेजी कि 50 से 60 दिन जितने भी आपको लगते हैं, एक रीडिंग आपको देनी है द बेसिक सोर्स की। उसके बाद में आपको नोट मेकिंग के लिए दोबारा रीडिंग देनी है, और उसके साथ एक सोर्स को मल्टीप्लाई करते हुए उसमें नोट मेकिंग ऐड करनी है, और उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग वाला चीज़ करनी है, ठीक है। नोट्स मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल, क्लास के बीच में या दौरान में मैं आपको नोट्स डिक्टेट करते रहूँगी या बोलते रहूँगी, ठीक है। उसके अलावा मैं सोर्सेज के बारे में भी बोलते रहूँगी। तो इस तरह से हमारा एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन होता रहेगा। एंड न्यूज़पेपर से भी आपको काफ़ी सारे केस स्टडीज़ मिलते रहेंगे। All right, I think let's end the session. There are no more questions that I can see right now. How much percent? I'm sorry, I'm not able to read the previous messages. जी बिल्कुल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ ही प्रिपरेशन हमारी चलेगी, ठीक है। वीकली आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे जो भी वीक में हमने कवर किया है, और पढ़ाना भी वीकली ही होगा, ठीक है। जिस तरह का मॉड्यूल या शेड्यूल मैंने 6 वीक का बनाया हुआ है फॉर द बिगिनर्स, तो उसी तरह से मैं भी आपको पढ़ाऊँगी। वाई एंथ्रोपोलॉजी नॉट जूलॉजी? Inculcate discipline to maintain consistency. टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360 कोर्स का जो फी है वो आपको यूपीएससी गाइड में मिल जाएगा। आई थिंक द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी 360 इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। ये सारी जो भी एडमिशन या टेक्निकल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का डिटेल्स, the details to join the coaching will be available on UPSC guide website. Scope of anthropology as career.
या कार्तिक नोट्स आप ब्रेन ट्री नोट्स, तो वहाँ से पेपर 1 आप एक रीडिंग दे सकते हैं. दैट आर नॉट सफिशिएंट बट दैट दोज आर नेसेसरी. लास्ट एग्जाम. All right, guys. I think the questions are getting repeated, and I'm sorry, ma'am. I could not read your messages. They're coming too fast. Even if you send 24 times. NCERT 11th की बुक आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी की फॉर एंथ्रोपोलॉजी. दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू आर फॉर एंथ्रोपोलॉजी. अक्षर जैन की बुक भी ठीक है, मतलब दैट इज गोइंग टू बी लाइक एन वैल्यू एडिशन. उससे आप सारा का सारा सिलेबस नहीं कवर कर सकते इफ़ यू सी द पैटर्न, स्पेशली आफ्टर 2020. और जिस तरह के मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह का इंटरलिंकेज की ज़रूरत है, उसके लिए आई डोंट थिंक वन बुक इज सफिशिएंट. So you cannot rely on guide in the form of Akshar Jain book or rather Bhasmesar book. The coaching is going to be online. Mock test भी आप दे सकते हैं. It is based on sociology, but it is very different when it comes to physical anthropology. टेलीग्राम चैनल नहीं आ रहा है. आपको ये सारी चीज़ें एक साथ लिखनी है विथ केरला की एनसीईआरटी भी अच्छी होती है, बट देन डोंट मल्टीप्लाई योर सोर्सेज. ठीक है, ब्रेन ट्री एंड रेडी एंड you might think that there are very less sources, but less is more in UPSC. Always remember this. For the unconventional questions, I have फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी ब्रेन ट्री आप पहले पढ़ें और पीनात बाद में पढ़ें. फॉर द अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस जिसने भी पूछा है, उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. और उसके लिए आपका फर्स्ट रीडिंग जो आप करते हो, फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग, दैट उसमें आपको पूरी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इंटरनलाइज करने हैं. ठीक है, यू विल हैव टू इंटरनलाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव रेड फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड टाइम. ओनली देन यू विल बी एबल टू हैंडल द अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस दैट हैव बीन कमिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, वंस don't multiply your sources just because an unconventional question जैसे Natufian culture came. So that is why you don't have to read something different. It is just that you have to keep your curiosity intact so that you are better able to tackle those questions in like with less panic. क्योंकि उस तरह के questions are a bouncer for all the people, all the aspirants. Telegram channel is Anthropology UPSC 360. This is the Telegram channel. Anthropology UPSC 360, guys. All right. I don't think there are more questions related to anthropology. There are general doubts that are surfacing here. Even through self-study you can, but you will require a lot of time. Yes, this is the channel. Thank you, Sham Sundar. Let me pin the message, I guess. Okay. आई थिंक बुक के बारे में फिर से बता दो. एंथ्रोपोलॉजी प्योरली बिगिनर्स, विच बुक इज इम्पॉर्टेंट? ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एंड नो मैटर हाउ like
बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट सिंपल इज द की, सिंप्लिसिटी इज द की. सो just focus on Braintree for paper 1 and Muniratnam Reddy for paper 2. और इसके अलावा फिर आप then when you go for the second reading, then you can do the value addition after you have read the basic sources. Then you can do the value addition from your Ember and Ember or Peanut or Nadeem Hasnain. As many readings you do, it is better. ठीक है, जितना आप internalize करते हो subject को, the better way you can give the answers. So there's no hard and fast that, but minimum 3 times you have to give the reading so that you can, justify the answer that you're giving when it comes to writing UPSC mains. Advanced books में Ember and Ember is there, Peanut is there, Nadeem Hasnain is there. So these are sufficient. Again, don't multiply the sources. Important topics in anthropology. Very good question. The most important topic in anthropology is your theories. Unit 6, paper 1. That is the most important topic. उससे आपका most of the paper 1 will be covered, and in paper 2 and paper 1 combined, archaeology becomes important, and after that tribal anthropology is important. Like you can choose between tribal and Indian, anything. So that is what I would suggest. These are the most important topics, and उसके अलावा miscellaneous तो होती हैं, socio-cultural and physical is scoring because of the objectivity that it holds. So if I have to break the 6-week format also for you, बिगिनर्स की बुक मैंने ऑलरेडी बोल दी है काफ़ी बार. I think now the questions are getting repeated. So sources have already been discussed. Answer writing you will have to do after you do the note making. So don't bother about answer writing. Beginners के लिए जो books हैं, I would again repeat it for the one last time. How to deal with archaeology part. Archaeology, keep it simple. First read it from Braintree. ठीक है, combine with मतलब make notes in such a format archaeology में कि इंडिया का भी आप प्रिपेयर करें और साथ साथ में वर्ल्ड का भी उसी साथ में प्रिपेयर कर ले नोट जब आप बनाते हैं. Some things on important topic. Let me answer the question first. कि जब आप आर्कियोलॉजी के नोट्स बनाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 से कंबाइन कर ले इंडिया एंड वर्ल्ड का पार्ट. ठीक है, बोथ ऑफ देम आफ्टर यू कंबाइन देम यू कैन डू द वैल्यू एडिशन फ्रॉम एम्बर एंड एम्बर. So that will be much better. How to incorporate case studies and diagrams. So that will come through practice, and whenever you're making the note making के साथ ही you will have to draw your diagrams and the flow charts and whatever is coming to your mind creatively. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम note making में भी discuss करेंगे जब आप coaching मतलब if you're joining the coaching with me, I will discuss you कि किस तरह से आप आपके answers को भी innovative बना सकते हैं. So वो सारी चीज़ें discuss होंगी. और केस स्टडीज़ तो काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वैल्यू एडिशन मटेरियल भी शेयर किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट. पेपर 2 की स्ट्रैटेजी. पेपर 2 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन इज योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट. So you will have to focus on the anthropologist part, which is unit 4 of paper 2. After that comes your Indian anthropology. These are something that is very static or say that can give you more marks. Tribal anthropology में कुछ भी पूछ सकते हैं. So that is very dynamic. So पेपर 2 के लिए मैं वही बोल रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू रीड अबाउट द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फर्स्ट. ठीक है, एंड स्पेशली द फीमेल इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इसके ऊपर मैंने काफ़ी एम्फेसिस किया है एंड एक्सपेक्टिंग एन क्वेश्चन इन 2021 मेंस इटसेल्फ. सो लेट्स सी.
female Indian anthropologists have become very important after Jane Goodall question. Anthropology books have already suggested basic books, Muniratnam Reddy and Braintree. उसके अलावा advanced books में Ember and Ember, P. Nath and Nadeem Hasnain. That will suffice. And trust me, that will suffice. Don't go and don't read the books from cover to cover. Read whatever is there only in your syllabus. So that is important if you are doing the self-study. Otherwise, if you're joining the coaching with me, I'm there for you. So you don't have to worry about that much. तो जो भी डिटेल्स हैं सारी एडमिशन की वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व्ड मटेरियल बहुत कम मिलता है, ठीक है. वो प्लानिंग में है कि मैं ही आपको मतलब बताते रहूं, ठीक है. तो टेलीग्राम चैनल पे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो वहाँ से आपको इस तरह का मटेरियल मिल जाएगा. लेकिन इट इज़ बेटर कि जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो ट्राई एंड फ्रेम आंसर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस by yourself. That is a much better exercise than just reading some random previous year question answer booklet. Or otherwise then you can go through Akshar Jain book or Bhasme sir's book. जो भी आपको comfortable लगे वहाँ से आप मतलब previous year questions को देख सकते हैं थोड़ा सा. All right, thank you guys. Thank you for joining in. And I hope to see you in the upcoming courses. Thank you. Bye.